الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا صحابة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا على سيدنا نبی والے نبی کا ہر شخص ایک مرتبہ اور آواز بلند یہ اصول تھا سبت پیغمبر کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصول تھا سبت پیغمبر کے سامنے ہرگز کبھی جھکو نہ ستمگر کے سامنے ہررا گیا تھا تیغ سے میدان کربلا ٹھہرا نہ کوئی بھی علی اکبر کے سامنے وہ پیاس کیسی پیاس تھی جو تیر سے بجھی کوثر کا جام آیا تھا شبر کے سامنے اور تاریخ میں جواب نہیں اس نماز کا شبیر نے پڑھی تھی جو خنجر کے سامنے اور وہ تو جانتے تھے مرض یہ مولا ہے ورنہ یہ وہ تو جانتے تھے مرض یہ مولا ہے ورنہ یہ فوز یزید کیا تھی بہت تر کے سامنے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت 10 محرم الحرام یعنی کل کے روز آپ جانتے ہیں اس دن کو کئی طرح سے نسبتیں حاصل ہیں یوم عاشور کو کئی طرح سے نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا یوم عاشور کا تھا رات 11ویں تھی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھوٹی پہاڑ سے لگی دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا شکا گلزار ہوا دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں کی تھی جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی تو وہ بھی دن 10 رات 11ویں کی تھی اور کائنات میں اس دن کو سب سے افضل بنا دیا گیا تو یہ دن سے بہتر دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے 10 یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی محترم بزرگ دوستوں آج کل زمانہ تھوڑا سا الگ ہے انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے اور کچھ ایسے شخص یا ایسے لوگ جن کی باتیں کوئی 2-5 لوگ بھی نہیں سنتے تھے وہ بھی ویڈیو بنا بنا کے ڈال نہ چاہتے ہوئے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے سننا پڑ رہا ہے کوئی شہیدان کربلا کو کسی اور طریقے سے لے رہا ہے کوئی کسی اور طریقے سے لے رہا ہے ہم کو اس طریقے سے لینا ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جس نے مجھ سے محبت کری اس نے حضور سے محبت جس نے مجھ سے محبت کری جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری اور جس نے مجھ سے محبت کری اس نے اللہ سے محبت کری جس نے حسین سے بغض رکھا فمن ابغض حسین فمن ابغضنی فمن ابغضنی فمن ابغض اللہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ آپ لوگ یہ واقعہ سن چکے ہیں کوئی بچے سے آپ پوچھ لیجئے سب کو معلوم ہے کہ کیا واقعہ ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آئے مسجد کے اندر اور ان کا بچپنا تھا تو وہ لڑکھڑا رہے تھے
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़कर आप दोनों शहजादों को उठा दिया और लाके मिंबर पे अपने साथ बिठाया, बोला जो इनसे प्यार करेगा वही मुझसे प्यार करेगा। एक साहबी का बयान है कि हम नमाज पढ़ रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पीछे उनके दादन हुजूर हजरत इमाम हुसैन खेल रहे थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर बदस्तूर सजदे में गए। काफी देर हो गई और देर हो गई, इतनी देर हो गई कि अल्लाह हमें, वो साहबी बयान करते हैं रावी में कि इतनी देर हो गई कि अल्लाह हमें माफ करे कि हमारे दिल में परेशानी का ख्याल आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसमें अकदस से रूह परवास कर गई। इतनी देर हो गई। एक साहबी ने कहा हो सकता मुझे खबर नहीं लगी हो, मुझे आवाज नहीं हो, तो कहते हैं मैंने थोड़ा सा सर उठा के देखा तो हुजूर बदस्तूर सजदे में थे और इमाम हुसैन उनकी पुश्त में खेल रहे। सजदा तवील कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बैत के लिए मजबूर किया गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उनके विसाल के बाद, और वहां के गवर्नर ने बुलाया, हालांकि वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने बोला कि ठीक है आप सोच के हमको वक्त दें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से मक्के तशरीफ ले गए। ये जो सफर है, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 7 महीना तक वहां पर रहे मक्के में। फिर उसके बाद हुदूद आने लगे अहले कूफा ने। अब कूफा जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको राजधानी भी बनी थी अपने खिलाफत के दौर में। वहां से खत आने लगे, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों, बहुत सारी तादाद में खत आ गए। और बाद खतों में ये लिख दिया गया कि अगर आप हमारे यहाँ पर आके आपने हमारी रहनुमाई नहीं की तो हम मैदान महशर में आपके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि हमने तो आपको बुलाया था लेकिन आप आए नहीं, जबकि मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, अल्लाह के अहकाम को खत्म किया जा रहा है, शरई और गैर शरई मामला भुला दिया गया है, शराबखोरी और जिनाखोरी आम कर दी गई है, मुहर्रमात का तो ख्याल नहीं किया जा रहा है, यानी कि जिससे निकाह हराम कर दिया गया इस्लाम में, उनका भी ख्याल नहीं किया जा रहा। हम ऐसे वो रोकने के लिए आपको बुला रहे हैं कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए और आप नहीं आ रहे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शफीक तबीयत, आप वहां से रवाना होने लगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने मना किया कि आप मत जाइए। देखिए कूफा के जो लोग हैं वो यकीन के काबिल नहीं है। आपके वालिद के साथ भी इन्होंने नाइंसाफी की थी, उनके साथ भी गद्दारी की थी, आपके भाई के साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी आप इन्होंने गद्दारी की। आप मत जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके भी बड़ा अदब करते थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खैर उनका उसी वक्त थोड़ा टाइम में इंतकाल हो गया। आपने क्या कि ठीक है मैं अपना एक कासिद भेज देता हूँ, वो वहाँ के जाके हालात देखेगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने रवाना किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर पहुँचे कूफा में, तो नुमान बिन बशीर वहाँ पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गवर्नर थे और वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने थोड़ी ढील दे रखी। ये रिवायत में आता है, एक रिवायत में आता है कि 18,000 कूफियों ने एक ही दिन में बेच दी हजरत इमाम हुसैन के नाम पे हजरत मुस्लिम बिन अकील, और एक रिवायत में आता है कि 12,000 लोगों ने बेच। जब उन्होंने ये देखा तो मुस्लिम बिन अकील बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने फौरन ही खत लिख दिया कि हालात सोगवार हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आप कूफा तशरीफ ले आए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खत बताया तो बोला कि हालात सोगवार हैं, अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपको मना करने के बावजूद भी फिर अब्दुल्ला इब्न बोला कि एक बार और सोच लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि अपन खिलाफत कायम करें तो यहीं से बिस्मिल्लाह कीजिए, हम आपके साथ हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे कोई खिलाफत की हाजत नहीं। अब आप ये देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए कहा हो कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो जन्नत के मालिक हैं, उन्हें ये छोटी मोटी खिलाफत की और ये समझिए कि सरदारी की और राजपाट की क्या जरूरत है। आप वहां से निकलने चाहे, मना किया गया, लेकिन आपने बोला कि मैंने ख्वाब देखा है, अब उस ख्वाब की तकमील करबला में होने वाली है, अब मैं नहीं रुकूंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे,
हुर को भेजा। इब्ने जियाद वहां से जो नोमान बिन बशीर थे उनको मासूर कर दिया यजीद ने, और इब्ने उबैदुल्लाह बिन जियाद ये एक बड़ा जालिम, फासिक, फाजिर और अहले बैत का पक्का दुश्मन था। ये बसरे का गवर्नर था, इसको भेजा कि हालात खराब हो गए हैं और मुझे खबर लगी कि कूफा में हुसैन आने वाले हैं, तुम जाओ और इसको रोको। अगर नहीं रोका, आपने रोक दिया तो इज्जत पाओगे, और नहीं रोका तो एक डिप्लोमेसी भाषा रहती है ना, जो एक दूसरे को लिखा जाता है कि अगर नहीं रोका तो फिर उसी गुलामी की तरफ खींच दिया जाएगा जहां पर 13 लोग गए। ये कूफा आया और इसने जुल्म जबर जो शुरू किया, तो जो 18,000 लोग ने कूफा का कसरा किया था, आप जहां ठहरे थे मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो उम्मे हानी का मकान था वहां पर, हानी बिन उर्वा उसके मकान पे ठहरे हुए थे। हानी बिन उर्वा के मकान पे जब वो इब्ने जियाद ने हानी को गिरफ्तार कर दिया तो उनको बचाने के लिए मुस्लिम बिन अकील ने कसरे कूफा का घेराव किया। तो आपके साथ 18 से 20,000 लोग थे, और इधर इब्ने जियाद आ गया, और इब्ने जियाद ने जो धमकी दी, ये बड़ा जालिम आदमी था। सारी कुफी लोगों ने सब ने अपना मौकूफ बदल लिया। आप नमाज पढ़ने गए मगरिब की, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला, आप नमाज पढ़ाने खड़े हुए, आपके पीछे 500 लोग थे नमाज पढ़ने वाले, तो आपने जब सलाम फेरा तो एक भी लोग मौजूद नहीं, चालू नमाज में भाग गए कुफा के लोग। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। तो हजरत इमाम हुसैन का काफिला रवा दवा था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में पहुंचे और खबर लगी कि इब्ने जियाद को भेज दिया गया और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने को बहुत सदमा हुआ, लेकिन मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला। वो आगे बढ़े, करबला के मैदान पर हुर को 2000 फौज, बाद रिवाज में 5000 फौज लेकर भेजा, और उसने इमाम हुसैन का रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब क्या करूं, नौकरी तो यजीद की करता हूं, मैं नमाज भी आपके पीछे पढ़ूंगा, लेकिन बस आपको यहां से जाने नहीं देना। आप चाहो तो इब्ने जियाद के पास हजरत इमाम हुसैन ने बताया कि ये समझिए कि तुम्हारे फांसी को फाजिर जो बन के बैठे में मलुकियत में जिन्होंने बदल दिया, हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, तुम इब्ने जियाद का बोल रहे हो, क्या नौकर इब्ने जियाद के पास, वो भी मैं, आपने जाने से मना कर दिया। हजरत ये मामला चलता रहा 7, 8 और 9 के रोज। फिर अम्र इब्ने साद को वहां से भेजा और 11,000 का लश्कर ले। अम्र बिन साद को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, मुझे वापस चले जाने दो, मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पे भेज दो, मैं वहां जिहाद करते हुए शहीद हो जाऊंगा, ये यजीद के बाद खुद भेज दो मुझे, मैं बराह रास्त उनसे बात करनी। लेकिन किसी बात पे भी नहीं माने वो। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खुतबा दिया कि तुम लोगों में कौन कौन है जिसने मुझे खत भेजे, आप मेरा किरदार देखो, मेरे अलावा यहाँ पर और कोई मौजूद नहीं है जो तुम्हारे नबी का नवासा हो, फकत मैं एक ही हूँ। मेरे कत्ल पे तुम क्यों आगे आ रहे हो? अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे कत्ल पे अल्लाह जितना नाराज होगा किसी के कत्ल पे। काफी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो लाइन इतने दुनिया उनके जिस्म में भरी हुई थी कि उन्होंने मना कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज्जत तमाम की। हुज्जत तमाम करने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों को मुखातिब करके एक ऐलान किया कि है तुम में कोई जो मेरा साथ दे। हर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, हल मिम मोगिसी योगी सनम, है कोई तुम में मेरा साथ दे। अब यहीं से एक आपके जहन को डरने लगेगा कि मुझे एक तरफ तो ये बताओ कि इमाम हुसैन यजीद की किसी मदद को लेने के लिए तैयार नहीं है, यजीदियों के मुकाबले में मारने को तैयार है। दूसरी तरफ यजीदियों ही से कहते हैं कि हनमिम होगी सी योगी सना, है कोई तुम में जो मेरी मदद करे। अगर मदद ही मांगना थी तो मेरे इमाम आपने यजीद से क्यों नहीं मदद मांग लिया? सबसे बड़ा बादशाह आपको मदद करने के लिए तैयार था, आप यजीदी फौज से क्यों मदद मांगते हैं? तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं आप नहीं समझे मेरी इस बात को। हनमिम होगी सी योगी सना का मफहूम आप समझो
मैं मदद मांग रहा था इसलिए नहीं कि आओ मेरी जान बचाओ, मैंने तो शहादत का फैसला कर लिया था। मैं तो यजीदियों में से पाक और सादतमंद रूहों को आवाज दे रहा था कि है कोई तुम में जो इस्लाम के ताउन में मेरी मदद करे, है कोई तुम में जो जान बिछाने में मेरी मदद करे, है कोई तुम में जो इस्लाम के लिए तलवार अपनी सीने पे लेने में मेरी मदद करे, है कोई तुम में जो मेरी शहादत में मेरी मदद करे। मेरे इमाम हुसैन तुम्हारे बहुत बड़े प्यारे हैं, तुम बड़ी बड़ी हम सूरत लेकर करबला के दरबार मैदान में उतरे थे। हरमिम मोगीसी योगी सना का मफहूम शहादतमंद रूह ही समझ सकती थी। उसने समझा जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन का घेराव किया था, उसने समझा जिसने 2000 फौज लेकर फिर आगे बढ़ा, फिर अपना घोड़ा दौड़ा था वो आगे बढ़ा। यजीदियों ने समझा कि हुर बड़ा चालाक होशियार और मुतब्बिर है, जाके हुसैन को पटा के लाएगा और हुसैन दुल्हे यजीद के सामने कैद पर मजबूर हो जाएंगे। आया हुर आंखों में चमक लिए हुए और रोके कहता है मेरे आका मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, मैं जहन्नम के दरवाजे से जन्नत की दहलीज चूमने की सादत हासिल कर रहा हूँ, मेरा हुसैन मुझे माफ कर दो। मगर करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी और शहीद इब्ने शहीद के जवान के तेवर मुलाहिजा कीजिए। कहता हुर आका मुझे माफ कर दो, तो इमाम हुसैन उठा के कहते हैं हुर तू तो जहन्नम से आजाद, हुर तू तो जहन्नम से आजाद है। अगर इमाम हुसैन ये कहते थे कि हुर मैंने तुझको माफ किया तो हालात क्या बनते? अगर इमाम हुसैन ये कहते थे कि हुर मैंने तुझे माफ किया तो हुर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता, हुर नर्वस हो जाता। लेकिन रसूल अल्लाह की औलाद मैदान करबला में किसी को एहसास कमतरी का शिकार बनाने नहीं आए थे, जो एहसास बर्तरी बांटने आए थे वो किसी को एहसास कमतरी का शिकार क्यों बनाते? हुर कहता है आका मुझे माफ कर दो, इमाम हुसैन कहते हैं कि तू तो जहन्नम से आजाद है। फिर आया हुर आगे और हुसैन की अजमत पर कुर्बान हुआ और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लाश को लाकर खेमे में रखा। अहले बेते मुस्तफ़ा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया बेटा हक तुम नबी के नवासे हो और अली की औलाद हो, हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के साथ हो। नताइज की शक्ल में गुलामाने अहले बैत भी मौजूद हैं। जब जंग के तरीके शुरू हुए तो सबसे पहला तीर अम्र इब्न साद ने चलाया और अम्र इब्न साद ने तीर चला के कहा है कि लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना कि हमने पहला तीर इमाम हुसैन पे चलाया था। कज़ा और कद्र के मालिक ने कहा बदबख्त एक तू है कि तूने इमाम हुसैन पे तीर चलाया, एक तेरा जन्नती बाप था कि मैदान उहद में हर हुजूर पे आने वाला तीर अपने सीने पे रोका करता था। अब देखिए क्या इनकलाब है जमाने की। मैदान करबला से पीछे उहद के मैदान में चलो, अबू सुफियान के तीर आ रहे हैं। आप लोगों ने सभी ने सुना है कि दो लोग रह गए थे, हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, और 200 लोगों ने जो घेर लिया था और वहां पर जो तीर आ रहे थे यही 200 लोग थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 200 लोग थे उन 200 लोगों को रोक रखा था। इन दो लोगों ने हुजूर की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे थे, चल रहे थे। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़ा हो गए आगे और तीर चला रहे थे। तो ये जो जुमला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बोला, ये फिर हुजूर पाक ने किसी से नहीं बोला। हर सहाबी ये कहता था कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साथ इसी तरह तीर चलाते रहो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। कज़ा और कद्र के मालिक ने बदबख्त एक तू है कि तूने इमाम हुसैन पे तीर चलाया, तेरा जन्नती बाप था कि हुजूर पे आने वाला तीर मैदान उहद में रोका करता था। ये इनकलाब है जमाने की। हजरत आगे बढ़े, जनाब ज़हीर ने आगे बढ़ के कहा कि जालिमों अगर मुकाबला करना है तो मेरे साथ करो। कुर्बान हुए जनाब ज़हीर, उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया कि दोस्त मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे उससे एक वादा करो। उन्होंने बोला मुस्लिम बिन अकील को बुलाया कि बोला तुम भी मेरे ही है। मुस्लिम इब्न उसजा को बुलाया, कहा कि तुम भी अपने आका पे ऐसे ही जान देना। मुस्लिम इब्न उसजा मैदान में उतरे और सुजात और जवां मर्दी का जोहर दिखाते हुए इमाम हुसैन के अजमत पर कुर्बान हुए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया, कहा दोस्त मैं दुनिया से जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा मुझे समझ में आ गई तुम्हारी बात, तुम्हारा एक बच्चा है करबला के मैदान में, एक बीवी है तुम्हारी करबला के मैदान में, हम दोनों की हिफाजत करेंगे। मुस्लिम इब्न उसजा ने कहा गलत, तुमने नहीं समझा मेरी बात को। ना इस वक्त मुझे बीवी याद आ रही है, ना मुझे इस वक्त बच्चा याद आ रहा है। आमना के लाल के चेहरे पे दर्द की परछाई ना पड़ने पाए, वो सैयदा के लाल के चेहरे पे मायूसी की किरण ना जगमगाए। आओ सुनो मुझसे, अगर तुम जिंदा रहे तो अपनी जान से खेलते हुए चले जाना और हुसैनी अजमत को बचाकर ऐलान करना कि हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, हम दोनों जहां के ताजदार के कायनात के सिपाही हैं। इतने में मुस्लिम इब्न उसजा ने दम तोड़ दिया। इधर मुस्लिम इब्न उसजा दम तोड़ते हैं, उधर एक खेमे से एक 8-10 साल का बच्चा अपनी कमर में लंडी सी तलवार लगाकर करबला के मैदान में भाग रहा है। जब करबला के मैदान में भाग रहा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको देखा तो पुकार उठे, मेरा साथ जल्दी से उस बच्चे को रोको। वो किसका लाल है जो करबला के मैदान में जा रहा है? आज उस बच्चे को बुलाया गया। जब उस बच्चे को इमाम हुसैन ने बुलाया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बच्चे तू किसका लाल है? उसने कहा आप मुझसे पूछते हैं किसका लाल हूँ? बोला कहाँ जा
रहा है? बोला करबला के जंग के मैदान में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है? बोला अजमत हुसैनी पे जान देने जा रहा हूँ। किसने मुझे सजा कर भेजा है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजा कर भेजा है। किसका लाल है तू? कहा आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ। हाँ बता दे बेटा तू किसका लाल है। बोला कि मुस्लिम की गर्दन जिस जो आपके जानू पे पड़ी हुई है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। और मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है कि बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहेगा, क्या करेगा? जब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कुर्बान हो जाए। आज एक बच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कुर्बान होता है। जरा देखिए आप, फिर तमाम असहाबा एक एक करके शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के लोगों की बारी आती है। हजरत अली अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। हजरत इमाम हुसैन की औलाद, हजरत इमाम हुसैन की औलाद हजरत इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे आते हैं। बोला बाबा अब जब्त की हद हो चुकी है, मेरा चचा दुनिया से जा चुका, मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा तुम्हारा हजरत ज़ैनब से इजाजत लो, तुम्हें पाला है फूफी ने। ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बच्चा आया और रोने लगा। बोलते हैं कि कासिम मैं जानती हूँ तुम अली अकबर में जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन किस मुंह से तुम्हें रण पे जाने की इजाजत दूं? तो वो कहते हैं अली असगर थे, लेकिन ये तो हमारे खानदान की रिवायत रही है। मेरे नाना के मेरे दादा से नाना के सर से जो के में खून टपका था उसकी तकमील करबला में होने वाली है। क्या फूफी तुम्हें मेरे दादा का वो वादा याद नहीं है जब पैगंबर जुल आशिरा पैगंबर ने दी थी? एक नुक्ता है, पैगंबर जुल आशिरा दावत जुल आशिरा पैगंबर ने दी थी और सारे सरबतदारों को मक्के में बुलाया, सारे कुरैशी हाशिमियों को मक्के में बुलाया। मक्के में बुलाने के बाद उनको खाना किया। खाने के बाद हुजूर पाक अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, कुरान किताब हिकमत है। तो कोई बुरा बोलते हुए उठा, कोई गलत बताते हुए उठा। ऐसे में ही एक 8-10 साल का बच्चा था, टांगे उसकी पतली पतली थी। वो खड़ा हुआ कि पैगंबर तुम्हारे मकासिद की तकमील में हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे मकासिद की तकमील में हम तुम्हारा साथ देंगे। मशीयत पूछ रही थी कि बच्चे किनका साथ देने की बात कर रहे हो? हम लेकिन मैदान से लगा कर जंग के मैदान तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? कहा हाँ साथ देंगे। कि हिजरत सफर से लेकर हिजरत तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? बोला हाँ देंगे। कभी किसी वो दिन तुम्हारे इनके बिस्तर है पर सोना पड़े, वो कत्ले नबूवत की रात हो, तो क्या तुम साथ दोगे? कहा हाँ साथ देंगे। उस बच्चे का नाम अली था। नबी ने जो वादा किया था वो वादा हजरत अली ने पूरा करने की कसम उठाई। आप देखिए इस हाँ का वादा हजरत अली कहाँ निभा रहे। हिजरत करना हुई तो हिजरत कीजिए, बचपन में वादा कर लिया था कि ना नहीं होगी। बिस्तर रसूल पे कत्ल की रात सोना है, हजरत अली सो रहे हैं और ना नहीं कर रहे हैं। और हजरत अली मस्जिद कूफा में खंजर चल रहा है और अली ना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के लिए वादा कर लिया था कि रसूल अल्लाह के दीन के लिए हमेशा हाँ होगी। ये हमारी ना कभी ना में नहीं तब्दील होगी, हमारी हाँ कभी ना में नहीं तब्दील होगी। अली अकबर कह रहे हैं कि जिस नाना के दीन के लिए हाँ की थी मेरे दादा ने, उसी नाना के दीन की हाँ में हाँ मिलाने जा रहा हूँ और यजीद की हाँ में ना मिलाने जा रहा हूँ। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। जब इमाम हुसैन के 18 साल की कड़े जवानी लेकर हजरत अली अकबर जब मैदान में उतरे तो यजीदियों ने अपने मुंह फेर लिए। यजीदी फौज के लोगों ने तलवार गिरा दी। शिमर बोलता है क्या हुआ? बोला हद हो गई अब तो बेशर्मी की, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं लेकिन अब नबी से जंग कैसे करें? बोला नबी कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें? बोला देखो वो कौन आ रहा है। बोला अरे ये तो धोखा हो रहा है, ये तो नबी नहीं है, शबीह नबी है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत थे। ऐसा लगता था कि तस्वीर नबी आई है। माह अनवर देखकर, मेहरे मुनव्वर देखकर झूम उठा रोज़े शब्बीर व शब्बर देखकर। एक ही सूरत मिलेगी आईना दर आईना, रूह अकबर देख लीजिए, रूह अनवर देखकर। हजरत अली अकबर आए।